Hello, Tanthis. We are here with another topic that is arithmetic progression. This is chapter 5, and you have already studied about sequence and series. So, this is step up of the same chapter, sequence and series. So, what do you understand by a sequence? Can anybody guess? Yeah, a sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule. Now, if you look at the following example here, first example says 2, then 4, 6, then 8, and dash, dash, dash. If you look at the sequence, can you guess the next term? Yeah, we are making a sequence in which the next term is made up by adding 2. So next term of this sequence will be 10, and if we again add 2, then it will be 12, and the sequence will go on. Now let's move on to the next example. In this example, it is 1 square, then 2 square, then 3 square, then 4 square. Yeah, yeah, these are the squares of the natural number. So next term, can you guess? 5 square. Again, next one will be 6 square and dash dash dash. Very good. Now the next one. Yeah. Tell me. 1, 8, 27, 64, 125. Wow. What is this? कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम समझ में आ गया. हाँ जी बताइए ये क्या है. या दिस इज द क्यूब. 1 क्यूब. 8 क्या होता है? 2 क्यूब. देन 3 क्यूब एंड देन 4 क्यूब एंड देन बोलो बोलो 5 क्यूब. Now what will be the next term? Yes, it can be 6 cube and then 7 cube and so on. So in this sequence we have in this sequence we can find the next term. Okay, now the different number which are separated by the commas are called the terms. So sequence is the arrangement in with some rule, so we can find the next term. Now look at the arithmetic progression. Now what is the difference between sequence and arithmetic progression? Basically, in arithmetic progression, it is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Got it? So यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म बनेगा इट इज बाय एडिंग अ फिक्स नंबर. अब ये जो एडिंग अ फिक्स नंबर हम बात कर रहे हैं, दिस फिक्स नंबर कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव एंड दिस कैन बी जीरो एज वेल. गॉट इट ना? तो नेक्स्ट टर्म जो हमारी बनेगी दैट विल बी बाय एडिशन ऑफ सम फिक्स्ड कांस्टेंट, फिक्स्ड नंबर. अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, in this example this is -3, -6, -9, -12. So what are we doing? This is our first term, this is our second term. Second term obtain करने के लिए हमने क्या किया? We added -3. Got it? Next -9, तो -6 में फिर से मैं -3 ऐड करूंगी, I will get -9. Then -3 फिर से ऐड कर दीजिए, -12. Now, how can you find the next term? We will just keep on adding -3. So next term can be -15, and the another will be again add -3, -18, and dash dash dash. You can find infinite terms by adding -3. Now, this -3, the fixed number in this question is called common difference, and common difference जो होता है इसको हम represent करते हैं generally अल्फाबेट डी से. एंड ये जो डी होता है ना, कॉमन डिफरेंस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. अब आप में से कौन बच्चा मुझे ये बता सकता है कि इन दिस एग्जांपल डी वाज, यस इट वाज नेगेटिव. इन दिस एग्जांपल डी जो हमने लिया है दैट इज नेगेटिव. ठीक. अब यहाँ पे अगर मैं आपसे सीक्वेंस के एग्जांपल्स में पूछूं, इन दिस वन which one can be the AP example as well? Yes, the first one, because we find this AP by adding some constant fixed value. Okay, but the second one and the third example of these sequences are not arithmetic progression, because that is a pattern that is not obtained by adding a fixed number each time. I hope the difference is clear between the sequence and the arithmetic progression. चलिए एग्जाम्पल 2 पे मूव करते हैं. इट इज सेइंग 0.6, देन 1.7, देन 2.8. हम लोग नेक्स्ट टर्म कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पे अगर हम ये वाली जो है हमारी फर्स्ट टर्म है,
जिसको हम A1 से डिनोट कर लेते हैं, ये हमारी सेकेंड टर्म है जिसको हम A2 से डिनोट कर लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? 1.7 minus 0.6, it is 1.1. So each term is obtained by adding, बोलो नेक्स्ट टर्म में क्या हम कर रहे हैं, एडिंग 1.1. तो 0.6 प्लस 1.1 अगर मैंने किया तो क्या आया 1.7. फिर से 1.7 में 1.1 ऐड कर दो 2.8. और अगर मैं इसमें फिर से 1.1 ऐड करूंगी द नेक्स्ट टर्म विल बी 3.9 एंड सो ऑन. क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं. इन दिस एग्जांपल वी आर एक्सप्लोरिंग द फ्रैक्शंस. अब ये जो हमारा 1/15 है, दिस इज द फर्स्ट टर्म. 1/12, दिस इज द सेकेंड टर्म. 1/10, इट इज द थर्ड टर्म. हमने कैसे ऑब्टेन किया नेक्स्ट टर्म? तो यहाँ पे आपको अभी नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि फर्स्ट टू टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो हर बार हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए. तो यहाँ पे आप अगर करके देखना चाहो तो 1/12 इज द सेकेंड टर्म. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम दिस. द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इज 60. ठीक है ना, दोनों के टेबल में सबसे पहले कॉमन नंबर 60. तो 12 5s are 15, 4s are 60. So it is 1/60. It is 1/60. So what are we doing? We are adding 1/60 each time to obtain the next term. तो 1/15 में 1/60 add करूंगी, I will get 1/12. And then again, if I add 1/60 in 1/12, I will get 1/10. So this is a series, this is an arithmetic progression in which common difference D is 1/60. So next term is obtained by adding a fixed number which is 1/60 in this case. Now the general form of an AP जो होता है that is A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D and so on. In this one, the first A, this is called the first term. A को हम क्या बोलते हैं? First term. और उसके बाद ये D तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना, D क्या होता है? This is called the common difference. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कुछ और? Yes, it can be positive, it can be negative, it can be zero as well. तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं जिसमें मैं कॉमन डिफरेंस को जीरो बना दूं तो क्या होगा आपका एपी? लेट्स से वी आर टेकिंग 10 एज द फर्स्ट टर्म. तो हर बार आप इसमें अगर 0 0 ऐड करते जाओगे 10 10 10 10 10 10 10 10 10, तो क्या बन गया हमारा? दिस इज an AP in which the common difference is 0. ठीक है ना, हर बार 0 ऐड करना है तो बेसिकली टर्म विल रिमेन दी सेम. So we have studied what is arithmetic progression, what are the different examples where you can say the sequence is an arithmetic progression. तो basically arithmetic progression हमारा कैसे बना? Adding a fixed number to the preceding term. और फर्स्ट टर्म हम लोग जो गिवन है उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्या है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ एपीज, कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, हमें ये चेक करना है इफ दे आर एपीज और नॉट. उससे पहले यहाँ पे हमारे पास जो एपी होती है ना वो दो टाइप की होती है. वन इज कॉल्ड फाइनाइट एपी एंड अदर इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी हमारी कौन सी होती है? जहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म जो होती है डिफाइंड होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द sequence of first natural number, 100 natural number, so 1 2 3 4 dash 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 up to 100. So in this sequence, in this AP, the last term is given. So last term given का मतलब finite number of terms, so this is called finite AP. अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि हमारा जो AP है that is 2 4 6 8 dash dash dash, basically this is the AP consisting of all even numbers starting from 2. So this is having dash dash dash, मतलब कोई last term तो मेरे पास है नहीं. So this is infinite AP in which there are infinite number of term. अब अगर मैं इस infinite AP की बात करूं, आप में से कौन कौन बच्चा मुझे A बता सकता है? Wow, this is 2. And what is D? D का मतलब क्या होता है? Common difference. And common difference हम कैसे find करेंगे? That is
A2 माइनस A1 से, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो D मेरा यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2, दिस इज 2, है ना? मजा आया? A भी 2 है, D भी 2 है, एंड वी कैन मेक मैनी टर्म्स बाय एडिंग 2 to 2 इन द प्रीसीडिंग टर्म। अब यहाँ पे ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है D इज इक्वल टू AN+1, D is equal to AN+1 minus ANth term. Basically, preceding term जो होती है that should be subtracted from the succeeding term. तो आपका AN+1th टर्म जो भी रहेगा, मान लीजिए N को मैं 5 दे देती हूँ, तो D मेरा इस केस में क्या हो जाएगा, A5 माइनस D को, अगर N को मैंने 5 दिया तो 5 + 1 6, A6 माइनस A5, दिस विल बी D। सो बेसिकली टू सीक्वेंशियल टर्म्स का डिफरेंस, बड़ी टर्म पहले लेंगे, छोटी टर्म बाद में लेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है, only then we will be able to say the sequence will be AP or not। अब यहाँ पे देखो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में जो ये वाला 10 है, दिस इज द फर्स्ट टर्म A1, देन द सेकंड टर्म A2, देन द थर्ड टर्म A3 एंड नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड A4 एंड सो ऑन। तो D हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज A2 माइनस A1। तो अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, हमें ये नहीं पता चल सकता whether the given sequence is AP or not। For that we will take D as A2 minus A1 and again you will take D as A3 minus A2। ठीक है ना? फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस मेरा 3 आया, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस 16 माइनस 13 कितना होता है, अगेन 3। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस A4 माइनस A3 अगर मैं लेती हूँ 19 minus 16 which is 3। तो in all the cases it is having a common difference। ठीक है ना? एक कॉमन कांस्टेंट फिक्स नंबर 3 को ऐड करके नेक्स्ट टर्म बन गया। सो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, दिस इज एन AP, और AP में D का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, 3। क्लियर है? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन हमारा आता है। अब नेक्स्ट अगर हम चेक करें 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। अभी हम क्या करेंगे, डी के लिए चेक करेंगे। तो डी के लिए चेक करने के लिए मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मैं फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस ले लेती हूँ डी। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 माइनस A1 इसके इसमें क्या है, 5/3 माइनस 1/3, तो कितना होता है बेटा जी, 4/3। सिमिलरली अगर आप A3 माइनस A2 कर दोगे तो 9/3 माइनस 5/3, कैन यू गेस, yeah, this is again 4/3, and if you subtract next two terms we will again get 4/3। तो yes, this is also an AP with D कितना आ रहा है, 4/3। Okay beta ji, so how will we check whether the given sequence is an AP or not? You will subtract the sequential terms and if the common difference is same then we will say this is an AP and otherwise it is not। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे A1 दिया हुआ है -3, A2 दिया हुआ है 3, देन A3 -3 एंड A4 3। तो इस सीक्वेंस में अब हम इसको AP के लिए चेक करते हैं। तो AP के लिए मैं कैसे चेक करूंगी, D फाइंड करो, D का मतलब होता है A2 माइनस A1। तो D जब मैं निकालूंगी दिस इज 3 माइनस A1 की वैल्यू है -3, तो आई यूज दिस ब्रैकेट सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज विद टू नेगेटिव्स एंड इट इज 3 + 3 विच इज 6। अगेन अगर मैं यहाँ पे D फिर से निकालती हूँ A3 माइनस A2, देन व्हाट विल यू गेट, A3 मेरा कितना है -3, A3 की प्लेस पे रखो -3 माइनस A2 हमारा कितना है 3, तो -3, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -6 विल बी दी डी। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस 6 आ रहा है, नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस -6 आ रहा है, तो व्हाट कैन यू से, इज इट एन एपी, नो, this is not an AP। So common difference between any two successive terms should be same। ठीक है बेटो, अब यहाँ पे एक डेसिमल एग्जांपल लें। डेसिमल एग्जांपल में हमने लिया है A का वैल्यू -1.5, D का वैल्यू -4.8, देन A का वैल्यू A1 -1.5, देन B -4.8, देन -8.1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम फिर से D के लिए ट्राई करें, D फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस लीजिए, -4.8 में से -1.5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना आपका,
तो -4.8 plus 1.5, so what is the difference? -3.3. क्लियर? अब -3.3 को अगर मैं नेक्स्ट टू टर्म्स के लिए फिर से चेक करूं, ये मेरा A3 है -8.1, उसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है A2 -4.8. What is the difference? Yes, this is again -3.3. So third part is yes, this is an AP. So I hope अब आपको क्लियर हो गया है how are we finding whether the given sequence is an AP or not. अभी हम क्या करते हैं, एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 7 आप मुझे बताओगे? हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, मेरे कान खुले हुए हैं, जल्दी जल्दी जल्दी. यस, फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस 5a minus a 4a. नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस 9a minus 5a 4a, देन 4a, देन 4a. या दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस. वेरी गुड, 4a. अभी हमें क्या करना है? हमने नॉर्मल इंटीजर्स की फॉर्म ले ली, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म ले ली, हमने डेसिमल ले लिए, बट can we use AP concept with irrational numbers? Let's try. Now in example 4, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? √3 minus √6 minus √9 minus √12. अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करना चाहोगे तो क्या मिलेगा हमें? बताइए, कॉमन डिफरेंस अगर मैं चेक करना चाहूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? √6 minus √3. अब ये जो √6 minus √3 होता है, will it give any number? Because these are unlike irrational, they will not solve further. Similarly next टू का जब मैं डिफरेंस लूंगी, √9 जो होता है वो 3 होता है, 3 minus √6 अगेन अनलाइक हो जाएंगी. सो यहाँ पे आपका ये AP फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज द टू कॉमन डिफरेंसेस √6 minus √3 and 3 minus √6 आर नॉट सेम. ओके बच्चा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे अगर आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि जहां पे आपके इरेशनल नंबर आ गए, जहां पे आपका रूट का सीक्वेंस है, दैट इज नॉट एन AP. तो एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं जहां पे हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे. इफ देयर आर सीक्वेंस ऑफ इरेशनल दैट कैन आल्सो फॉर्म एन AP. तो अब इसके लिए हम चेक करते हैं. यहाँ पे देखो, फर्स्ट है मेरा √2, उसके बाद है √8, उसके बाद है √18, उसके बाद है √32. तो √8 क्या होता है? बोलो बोलो बोलो. √8 4 2 सा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√2. क्लियर है ना? अब √18 क्या होता है? 3 9 सॉरी 2 9 है ना, 2 9 18. अब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसमें से 3 बाहर लो, √2 अंदर बच जाएगा. सिमिलरली 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 into 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, सो इट विल बी 4√2. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका जो टर्म्स हैं दैट गेट कन्वर्टेड एज √2, 2√2, 3√2, 4√2. क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस लेती हूँ डी के लिए, तो डी मेरा क्या हो जाएगा? 2√2 minus √2, √2 आएगा. फिर 3√2 minus √2, क्योंकि लाइक इररेशनल्स हैं, लाइक इररेशनल विल गिव अस द difference. So this is 3√2 minus √2 is √2, 4√2 minus √2 is again √2. As common difference is same, therefore this sequence will form an AP. और यहाँ पे मेरे पास next term क्या आ जाएगी बच्चा? 5√2. अगली term फिर से लिख सकते हैं क्या हम? Yes, 6√2 and so on. So we can find any number of terms whatever we want. चलिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन इस पेज में से मुझे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है? 10, 10 plus 2, then 10 plus 2 square, then 10 plus 3 cube, 2 cube, and then 10 plus 2 power 4. अब 10 का मतलब तो 10 ही रहेगा, कुछ चेंज हो नहीं सकता. उसके बाद 10 plus 2 का मतलब होता है 12. ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप ये मत देखना 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 ऐड ऑन हो रहा है, नहीं. इसको प्रॉपरली अगर आप ऐसे सॉल्व करके चेक करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर. अब 10 plus 2 power 4 कितना हो, 2 power 2 कितना होता है? 2 2 4 plus 10 14. देन 2 की पावर 3 कितना होता है? 8. 8 plus 10, 2 2 4, 2 8 ना, 8 plus 10 18. एंड देन 2 पावर 4 कितना होता है? 2 2 4, 2 8, 2 16 plus 10. 10 plus 16 is 26. ठीक है? अब ये देखिए, यहाँ पे आपको चेक करना है. यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस लोगे तो यू विल फील यस द डिफरेंस कम्स 2, बट आगे अगर आप लेते जाओगे देन इट क्लियरली शोज दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन AP. ठीक है बच्चा?
सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा नो, दिस इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी। तो अभी हमने यहाँ पे क्या चेक किया, वी वर गिवन सम examples of sequences and in that we checked whether they are forming an AP और ये हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, कुछ APs दिए हैं and they are asking right next two terms, ठीक, राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इसके लिए हम एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या था। इट वाज a plus d, then a plus 2d and then a plus 3d. So we were adding constant common difference each time. अब हम क्या करते हैं, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस फाइंड करके फिर हम उसको ऐड करते जाएंगे टू फॉर्म नेक्स्ट टू टर्म्स। अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म है √5। ध्यान रखो, अभी रूट को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है इरेशनल नंबर एपी फॉर्म कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट इसमें तो हम बोला ये एपी दे रहा है ना बेटा। अब √20 को मैं क्या लिखूंगी, बोलो 4 5, ठीक है, और √4 कितना होता है 2, तो √20 का मतलब है 2√5। अभी तो काफी बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी हाँ जी समझ आ गया समझ आ गया, यस, √45 9 5, और इसका अगर मैं रूट लेती हूँ तो दिस इज 3√5। तो हमारे पास क्या बच गया, √5 2√5 3√5, बोलो हाँ जी 4√5 and then 5√5 and so on, clear। Next question 2, it is saying 6 13 20 and dash dash dash। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं। डी हमारा क्या था, a2 माइनस a1। तो 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना होता है बच्चा, दिस इज 7। अब देखो 13 प्लस 7 20 आया, 20 में फिर से 7 ऐड कर दो, 27 आ जाएगा। 27 में अब मुझे क्या ऐड करना है, फिर से 7 ऐड करना है, 34 एंड सो ऑन। इसने मुझे नेक्स्ट टू टर्म्स बोला है तो मैं टू टर्म्स निकाल रही हूँ, अगर ये 3 टर्म्स बोलता है तो मैं 3 निकाल देती। थर्ड निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, सिंपली 7 ऐड करते हैं हम इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -1.5 -2.0 -2.5। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगी तो व्हाट विल बी माय कॉमन डिफरेंस, डी, दिस इज a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा -2, अगर -2.0 है मैं इसको -2 लिखूंगी तो भी तो चलेगा ना, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इसमें से अब मैं a1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो जहां पे दो नेगेटिव साइन होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से यूज करना बच्चा। तो -2 माइनस माइनस प्लस 1.5, सो -2 प्लस 1.5 विल बी 0.5 विथ नेगेटिव साइन। अगर आप 0.5 बोलो या 0.5 बोलो इट विल बी सेम। अब हर बार देखो मैं क्या कर रही हूँ, -1.5 में -0.5 ऐड किया, -2 आया, फिर से -0.5 ऐड किया, -2.5 आया, फिर से -0.5 ऐड कर दो, यस -3, देन -3.5 and -4 and so on. So finally we find the terms, the next two terms -3 and -3.5। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4। कुछ अजीब सा सीक्वेंस लग रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लग तो रहा है, बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे इसमें अजीब तो कुछ है नहीं मैम, हर बार हम क्या कर रहे हैं, डी को ऐड कर रहे हैं, और डी क्या है, a2 माइनस a1, तो 0 था ना फर्स्ट टर्म, तो इट इज 1/4। तो देखो 0 0 में 1/4 ऐड किया, 1/4, फिर से 1/4 ऐड कर दूंगी तो 1/2 बन जाएगा ना। ये एक देखो, ये ऐसे अगर मैं ब्रेक कर देती हूँ सर्कल को, तो ये 1/4 पार्ट है, इसमें 1/4 पार्ट ऐड कर दिया तो क्या बन गया, 1/2। इसमें फिर से 1/4 ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 3/4। अगर मैं इसमें फिर से 1/4 ऐड कर दूंगी तो इट विल बिकम 1। अब 1 में फिर से 1/4 ऐड कर दो, 1 में फिर से 1/4 ऐड कर दो, 5/4। मुश्किल है ना, ना कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब होता है, जब हमें समझ नहीं आता। कोई भी चीज मुश्किल तभी होती है जब समझ नहीं आती है, अदरवाइज मुश्किल नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब जब भी हमें स्क्वायर टर्म दी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर ओपन करके ना चेक कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर बोलो बोलो 49 होता है। और अब मुझे ये देखना है वेदर कॉमन डिफरेंस है। वैसे तो घबराने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मुझे तो एपी दी हुई है। तो 25 माइनस 1 24, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा, 24। डी इज 24। अब 49 में 24 ऐड कर दो,
दिस इज 73। अब 73 में फिर से डी ऐड कर दो, क्योंकि मेरी जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, सो ऑन। तो यहाँ पे मैं फिर से 24 ऐड कर दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा 97 एंड डैश डैश डैश। सो टेन टेन निकली ना। हमने हर केस में नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी को फाइंड कर दिया। अब अभी हमें एपी की नेक्स्ट टू टर्म बनानी तो आ गई, क्या हमें एपी बनाना आता है? देखें, ये बोल रहा है एपी लिखो, राइट दी एपी, एपी लिखो, जिसमें फर्स्ट टर्म इज -6। फर्स्ट टर्म क्या होता है बोलो? ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ए इज -6। इस माइनस को भूल मत जाना, माइनस को भूल गए तो सब गलत हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस बोलो 5। तो एपी क्या बनेगी? एपी कैसे बनानी थी हमने? पहले ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, तो ए का मतलब -6। अब इसमें डी को ऐड कर दो, -6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -1। अब इसमें फिर से डी को ऐड कर दो, -1 प्लस 5 4 हो जाएगा। अब इसमें फिर से डी को ऐड कर दो, देन 9 हो जाएगा, डैश 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 डैश। हो गया ना? तो एपी बनाने के लिए मुझे ए दिया हुआ था, सबसे पहले लिख दिया, डी दिया हुआ था, हर बार ऐड कर दिया। आई गॉट द आंसर। द रिक्वायर्ड एपी इज -6 -1 4 9 डैश डैश डैश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एपी बनानी है, उसमें हमें फर्स्ट टू टर्म्स दे दी है। वेरी गुड। अगर इसने फर्स्ट टर्म -3 बोली, सेकेंड टर्म 4 बोली। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे डी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में मुझे डी नहीं दिया हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं डी निकाल पाऊंगी? हाँ बेटा, आप डी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं डी? याद आया? a2 माइनस a1 करके। तो अगर मैं a2 माइनस a1 करती हूँ, आई विल गेट डी। तो 4 प्लस 3 दिस इज 7। तो हर बार मुझे क्या करना है? 7 ऐड करना है। तो 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 18, एंड फिर से 7 ऐड करना है, कर दो, आपकी मर्जी। वी गॉट दी एपी एज -3 4 11 18 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक ट्विस्ट दिया, वाओ यार, फिर से ट्विस्ट है। हर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आ रहा है। अब इसने बोला nth टर्म, ठीक है ना? मुझे nth टर्म दे दी है विच इज 5n -3। ना मुझे ए दिया, ना मुझे डी दिया, ना मुझे फर्स्ट टू टर्म दी, मुझे nth टर्म दे दी। कैसे निकालूंगी बताओ? आ गया कुछ? चलो कोई बात नहीं, आपको समझा देते हैं। अगर मैं n को 1 डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? a1। a1 मेरा देखो कितना है? 5 इंटू 1 -3, तो दिस इज 2। अब a2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? n को ना 2 पुट कर दूंगी, तो दिस इज 5 इंटू 2 -3। तो 5 2 10, 10 -3 7। फिर a3 निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? 5 इंटू 3 -3, तो 5 3 जा 15, 15 -3 12। तो AP बन रही है 2 7 12 डैश डैश डैश। कॉमन डिफरेंस चेक किया, दिस इज 5। So yes, this is the required AP in which A is 2, then second term is 7, third term is 12, and next term can be obtained by adding 5, which is common difference. So 12 plus 5 is 17. Yes. So we have solved all the questions in this sheet. चलें जी, next question देखें हमारे लिए क्या है। हमने क्या अभी तक क्या क्या सीखा है, एक बार रिमाइंड करें। हमने चेक किया एपी सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा एपी क्या होता है, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स को चेक किया वेदर दैट वाज एपी और नॉट। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए जहां पे हमें एपी की नेक्स्ट टर्म बनानी थी, और फिर हमने एक सेक्शन किया जहां पे हमें कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग एपी खुद से फॉर्म करनी थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो अभी तक हमने काम किया है ना, 5.1 एक्सरसाइज हमारा कवर हो रहा है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास है nth टर्म। ठीक, nth टर्म ऑफ AP को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, लेट्स रिवाइज। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मेरी nth टर्म का फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग 2-3 शीट्स ऐसी करते हैं जहां पे हम इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन सीखते हैं। सो इट इज अबाउट द सेकंड एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन सेम नहीं ले रही हूँ, बट यस, कंसेप्ट एनसीईआरटी के ही कवर करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो, हमें निकालना है 12th टर्म, फाइंड द 12th टर्म। तो अभी एपी क्या है? सबसे पहले आपको जब भी पेपर में एपी का क्वेश्चन आएगा, आई वुड रिकमेंड आपको जो भी न्यूमेरिक्स दिए होंगे ना, उनको आप अपनी आंसर शीट पे लिख लो।
ठीक है, तो मुझे एपी दिया था, मैंने एपी लिख लिया 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है, जो चीज फाइंड करनी है उसको यहाँ लिख लेते हैं। A12 निकालना है, A24 निकालना है एंड nth टर्म निकालनी है। ठीक, तो मुझे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है। अभी कभी क्या होता है पेपर में, जब आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो या फिर आपको पेपर करने की थोड़ी जल्दी ज्यादा होती है, तो आप ना एक का आंसर दे देते हो, सेकंड पार्ट का आंसर दे देते हो और थर्ड पार्ट भूल जाते हो। ऐसा भी कुछ पूछा हुआ था, तो उसको अपना सेव करने के लिए कि आपके इस तरह से नंबर मत कटे, आप क्या करोगे, जो चीज निकालनी होती है ना उसको अपनी आंसर शीट पे ऐसे साथ साथ लिखते जाना। अब देखो बच्चा, मेरा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 9, सेकेंड टर्म 13, डी कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1। मैं काफी बार बच्चे बोलते हैं कैन वी राइट डायरेक्टली, तो आई वुड रिकमेंड A2 माइनस A1 करके निकालना। जब आपकी इंक्रीजिंग एपी होती है तो जनरली आप गलती नहीं करते, बट जब आपकी डिक्रीजिंग एपी होती है ना, तो आप नेगेटिव साइन को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हो, इस वजह से। सो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, मेरा 4D आ गया। अब मुझे निकालना है A12, तो ANth का फॉर्मूला क्या था, याद है कि भूल गए, ANth A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट डी। अब n की प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है, 12, क्योंकि मुझे 12th टर्म ऑफ दी एपी फाइंड करनी है। सो A12 विल बी, a की प्लेस पे पुट कर दो बच्चा, क्या पुट कर दूं, फर्स्ट टर्म विच इज 9, देन n क्या है मेरा यहाँ पे 12 माइनस 1, एंड यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर d से मल्टीप्लाई करना है विच इज 4। सो दिस इज 9 प्लस 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 क्या होता है हमारा 44, एंड 44 प्लस 9 क्या हो जाएगा 53। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी क्या निकाला, वी फाइंड द 12th टर्म ऑफ द एपी विच इज 53। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 24। ठीक है तुम लोग कर सकते हो, तो ठीक है मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर सकती हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो हम थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। तो एपी मैंने ऑलरेडी लिखा था, मैंने ए और डी दोनों चीजें उसमें आपको बता दी हैं। अब मुझे एन इज 24 के लिए निकालना है, तो एन की वैल्यू मेरी हो जाएगी 24। तो ए प्लस एन माइनस 1 का मतलब 23, क्योंकि 24 है ना एन मेरा, एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 23D। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चा, a की वैल्यू 9 और 23 इंटू डी, डी की वैल्यू है 4। सो दिस इज 9 प्लस 3 4 12, 8 प्लस 1, 92 प्लस 9, दिस इज, हाँ जी 101, एंड साइन विल रिमेन दी पॉजिटिव। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, वी फाइंड 24th टर्म ऑफ दिस एपी। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, nth टर्म ऑफ दिस एपी। अब आपको लगेगा n की वैल्यू मुझे 12 निकालनी थी, फिर 24 के लिए निकालनी थी, बट n की वैल्यू n का मतलब, सो बेसिकली व्हेन वी हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, तो हम क्या करेंगे, अपनी एपी में से a को पुट कर देंगे, d को पुट कर देंगे और n को n ही रहने देना। ठीक, तो a n का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 विद इन द ब्रैकेट d। तो a की प्लेस पे 9 डालेंगे और d की प्लेस पे बोलो 4 था ना, d कॉमन डिफरेंस, और n क्योंकि मुझे nth टर्म निकालनी है, n विल रिमेन n, तो n का हम कोई वैल्यू ऐसे पुट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉड मास लगाते हुए ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, फिर 9 माइनस 4 हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4n इज दी nth टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल 3 पार्ट्स किए थे, जब हमारा फाइनल आंसर आता है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने तीनों निकाल दिए। देखिए A12 यस, A24 yes, and this is the AN, and I would recommend बोलो, you should make a blog on your final answer, just in case if you make any error or maybe sometimes क्या होता है जब आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, आंसर ब्लॉक है, फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, सारे स्टेप किए हैं, तो टीचर विल जस्ट सी दी आंसर। ठीक है, और चेकिंग करते हुए सब टीचर्स को पता चल जाता है बच्चे को काम आता है या नहीं आता। ठीक जी, नेक्स्ट स्लाइड। अगेन वी आर डूइंग अ कपल ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन nth टर्म। जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वी विल रिवाइज द फॉर्मूला एवरी टाइम, ताकि फॉर्मूला याद है तो काफी हद तक क्वेश्चन ठीक होना आपके हाथ में होता है ना। तो an 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एपी लिखना होता है विच इज 10 एंड 7 एंड 4 एंड सो ऑन। अब इसमें मुझे ए क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है। अब बच्चे बोलेंगे मैं सीधा डी लिख लूं,
नहीं जी, सीधा मत लिखो, यहाँ पे लिखो a2 माइनस a1 और फिर साथ में क्या लिखो 7 माइनस 10, सो दिस इज -3। कभी कभी आप लोग सीधा 3 लिख देते हो, तो वो वाली मिस्टेक मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी आप पेपर में करें। सो d इज -3, रिमेंबर a2 माइनस a1। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, 41st टर्म, तो n की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 41। पुट करें फॉर्मूला में, तो a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो n की प्लेस पे पुट कर दो 41। तो a 41 के लिए क्या बन जाएगा, ये a की वैल्यू है मेरी 10 प्लस एन माइनस वन विच इज 41 माइनस वन 40 इंटू डी -3। तो यहाँ पे अब दो मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, इंटू एंड माइनस, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट को यूज करो, कंजूस मत बनो यार। 40 इंटू -3, सो दिस इज 10 minus 120, so minus 110 is the answer, minus 110 is the answer। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन तो दो तीन क्वेश्चन होने के बाद जनरली बच्चों को लगता है यार बड़ा आसान काम है, चलो जी नेक्स्ट पे मूव करो। तो लेट्स डू दिस ट्रायल क्वेश्चन। हरी आप मुझसे पहले कर सकते हो। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप एपी लिख दो, विच इज 3, 14, 25, 36 सो ऑन। इस एपी में ए क्या है, 3, इस एपी में डी क्या है, a2 माइनस a1। देखो बच्चा, अगर मैं भी हर बार ये पूरा लिख सकती हूँ तो आई थिंक यू कैन ऑल्सो फॉलो। सो 11 इज द डी। मुझे फाइंड क्या करना है, 26 टर्म, तो एन की वैल्यू मुझे दी हुई है 26 और मुझे फाइंड करना है ए 26 का वैल्यू। तो अब ए एन की प्लेस पे 26 मुझे चाहिए, तो ए 26, अरे फिर से फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 3, एन माइनस वन, 26 माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं करूंगी ना, मैं 26 माइनस वन को डायरेक्ट 25 की तरह ट्रीट करूंगी, और डी का वैल्यू है मेरे पास 11, सो दिस इज 3 प्लस 25 इंटू 11। 25 इंटू 11 को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 और 5 है ना, तो आप क्या करोगे, यूनिट्स प्लेस पे एज इट इज और 2 एज इट इज, इन दोनों के बीच में इनका सम आ जाएगा, सो दिस इज 7 हियर। सो अगर मैं इन दोनों को अब ऐड कर देती हूँ तो 278 इज द 26th टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्लियर। सो हमने क्या किया, वी फाइंड द अननोन टर्म ऑफ द गिवन एपी। अब वो 25th टर्म भी हो सकती थी, 100th टर्म भी हो सकती थी, दैट डिपेंड्स। तो वो जो भी हमें बोलेगा अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे को थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया है। अब ये बोल रहे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे मुझे जो एपी दी हुई है दैट इज 3, 6, 9, 12 डैश 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 अप टू 111। yes, this is our finite AP। finite AP क्या होती थी, जिसमें लास्ट टर्म डिफाइंड होती थी। अब इसके अंदर देखो हमारा A क्या है, B2 3, D क्या है हमारा A2 माइनस A1 करके निकाल सकते हैं ना, 6 माइनस 3 3। अब मुझे यहाँ पे A nth टर्म दी है, दैट इज द लास्ट टर्म, A nth टर्म 1111। ठीक है, तो मेरे पास ए एन का फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेसिकली जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं, कोई भी क्लास हम लेते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वी विल लर्न दी फॉर्मूला इन दी लेक्चर ओनली। तो फॉर्मूला अगर आपका लर्न हो गया तो आधा काम तो आपका वैसे भी खत्म हो जाएगा। अब ए एन की प्लेस पे 111 डालो, ए की प्लेस पे 3 डालो, एन तो मुझे फाइंड ही करना है ना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी, तो एन क्वेश्चन मार्क है, और डी की जगह पे हम क्या डालेंगे, कॉमन डिफरेंस विच इज 3। अब यहाँ पे मेरा 111 माइनस 3 हो जाएगा, दिस इज एन माइनस वन इंटू थ्री, तो ये हमारा कितना होता है, -3 अगर मैं कर देती हूँ तो 108 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू थ्री। तो ये वाला जो 3 है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दो, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 36, और ये -1 दूसरी तरफ जाके आपका हो रहा है +1। सो total number of terms in this given AP is 37. There are total 37 terms in this AP. Okay. Next question में हमें दे रहा है, we have to check if 184 is the term of the list 3, 7, 11 and so on। अब यहाँ पे हमें एक चीज का पता होना बहुत जरूरी है, बेसिकली वी हैव टू चेक 184 इस लिस्ट का एक नंबर है या नहीं। तो उसके लिए मुझे ना यहाँ पे एन फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए एन के लिए एन को जो पुट करेंगे
एन को फाइंड करेंगे और ए एन को हम 184 पुट करेंगे, तो एन जो होता है ये मेरा हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर, इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, इट शुड बी होल नंबर, ठीक है ना, जीरो तो नहीं हम बात करें ना, तो नेचुरल नंबर इट शुड बी 1 2 3 4 एनी नंबर, बेसिकली इट कांट बी फ्रैक्शन, इट कांट बी डेसिमल, इट कांट बी नेगेटिव, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस की जो टर्म होती है, एपी की जो टर्म होती है, इट इज अ नेचुरल नंबर, फर्स्ट टर्म होगी, 10th टर्म होगी, 15th टर्म होगी, बट डेसिमल टर्म नहीं होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला बोलो बोलो, फॉर्मूला तो मैं आज याद करवा के ही रहूंगी आप लोगों को, ठीक है। अभी आप ये भी बोलोगे ना हम बोर हो गए हैं, ठीक है जी, बोर हो जाओ, आई डोंट केयर, आपको ए भी लिखना होगा, आपको डी भी लिखना होगा, और डी में सीधा तो लिखने भी नहीं दूंगी, आपको क्या करना होता है, A2 माइनस A1 से डी को निकालना होता है। अगर आप हर क्वेश्चन में इतने स्टेप ले रहे हो, डू यू थिंक यू विल मेक एनी मिस्टेक? आई डोंट थिंक सो। चलो जी, हम यहाँ पे सब कुछ पुट कर चुके हैं, अब ये वाला 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 184 माइनस 3, और ये वाला 4 नेक्स्ट स्टेप में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे तो मैं थोड़े से स्टेप सेव करना चाह रही थी, बट ठीक है, अगर आप मेरे स्टेप सेव नहीं होने दे रहे तो कोई बात नहीं, तो दिस इज 181, और ये 4 आके डिवाइड हो जाएगा, ये n-1 की वैल्यू है ना, तो n-1 की वैल्यू के लिए अब मैं इस वाले -1 को अगर यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ तो ये यहाँ के +1 हो जाएगा, तो दिस इज 185/4 इज इक्वल टू n। तो चेक करो, 185 क्या 4 का मल्टीपल है, 4 4 16, 2 रिमाइंडर 25, 4 6 24, 1 10, 4 2 8 and 4 5 डेसिमल ना, सो नो, डेसिमल नंबर पॉसिबल नहीं है ना n की वैल्यू, तो नो, 184 इज नॉट a term of the given AP, not the term of the AP 3 7 11 and so on। तो आपको क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपने जो नई चीज सीखी वो ये सीखी है, n जो होता है नंबर ऑफ टर्म, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, इट इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट कौन से फॉर्मेट है इस चैप्टर में हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट सेज नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी इज -32, तो नाइन्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, नाइन्थ A9 इज -32, ठीक, और उसके बाद मुझे दिया सम ऑफ 11th एंड 13th टर्म ऑफ द एपी इज -94, तो 11th टर्म बचा A11, 13th टर्म A13, किसने बोला सम, तो A13 प्लस A11 इन दोनों का सम किसके बराबर है, दिस इज -94। अब हमें बोल रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डी, क्लियर है। अब ये वाले क्वेश्चंस जो है हम टू वेरिएबल्स टू इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। टू वेरिएबल टू इक्वेशंस तो अब आपको आई थिंक चैप्टर 3 तो अच्छे से आपको आता ही है, तो चैप्टर 3 अगर हमें आता है तो टू वेरिएबल टू इक्वेशंस आप आराम से कर पाओगे। A9 AN AN A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो A9 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू -32, ओके जी। अब A11 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 11 है ना, 11 से छोटा नेक्स्ट प्रीवियस नंबर क्या होता है 10, क्योंकि n-1 था ना बेटा, तो 10D। सिमिलरली A13 में A प्लस 13 का एक छोटा नंबर 12, तो A प्लस 12D, सो दिस इज इक्वल टू -94, यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे, 2A दिस प्लस दिस विल बी 22D इज इक्वल टू -94। अब यहाँ से एक कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो वाई शुडेंट वी कैंसिल, अगर हम कैंसिल करेंगे हमारा नंबर छोटा हो जाएगा, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड करो, दिस विल बी A, देन 11D, यहाँ पे 2 4 8, 1 14 बन जाएगा, 2 7 14, तो A प्लस 11D की वैल्यू मेरे पास आ गई -47। अब ये मेरी है फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी है सेकेंड इक्वेशन, व्हाट कैन वी डू, वी शुड सब्ट्रैक्ट, है ना। टू वेरिएबल टू इक्वेशंस हम क्यों यूज करते थे, टू गेट वैल्यूज ऑफ बोथ द वेरिएबल। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ऐड भी कर सकते हैं ना, ऐड नहीं कर पाओगे, अगर ऐड करोगे ना तो A प्लस ए 2A बन जाएगा, तो हमारा जो एक वेरिएबल हमें एलिमिनेट करना है वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, सो जस्ट चेंज द साइन, प्लस A माइनस ए कैंसिल ईच अदर, 11D माइनस 8D विल बी
3D, वेरी गुड। -47 प्लस 32 इज 15 और विद नेगेटिव, क्योंकि बड़ा नंबर तो माइनस है ना, तो डी का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, -15/3 -5। डी का वैल्यू हमारा कितना है, -5। अब डी का जो वैल्यू है उसकी हेल्प से मैं ए निकाल सकती हूँ। तो जो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना, उसमें पुट कर दो, पुट डी इज इक्वल टू -5 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये मेरा आ जाएगा ए +8 इंटू -5 इज इक्वल टू -32। 8 इंटू 5 40, -40 राइट साइड पे आके +40 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू -32 + 40। तो ए मेरा आ जाएगा 8। तो मेरे पास ए भी आ चुका है, मेरे पास डी भी आ चुका है। अरे मैंने तो ए ऐसे ही निकाल दिया, मुझे तो ए निकालने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन डिफरेंस पूछा गया था, तो कॉमन डिफरेंस -5। चलो अभी निकाल ही दिया है, तो आगे हम क्या करते हैं, इसमें एपी ही बना लेते हैं। तो एपी मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है पेपर में जितना दिया होता है उतना ही करना है, बट अभी कर दिया गलती से तो कर दिया। आप लोग नहीं करते क्या मिस्टेक। तो 8, 8 प्लस ऑफ -5 इज 3। इसमें फिर से -5 ऐड कर दो, -2, इसमें फिर से -5 ऐड कर दो, -7, सो ऑन। ठीक है जी। तो अभी देखो ना, मैंने इस क्वेश्चन में आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है, बट हो सकता है ना पेपर में यही सेम क्वेश्चन आपको एपी फॉर्म करने के लिए आ जाए। तो हाँ, हम टीचर्स है ना, टीचर्स लोग ऐसी बात करते हैं, अभी खुद से गलती हो गई है ना, तो ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of third and 10th term is 40 and sum of its 8th and 16th term is 70. We have to find the AP. अभी काफी बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन जो करवाया है ना, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, सो लेट्स ट्राई आवरसेल्व्स। तो ठीक है, जिस बच्चे को ये खुद से ट्राई करना है, मेरी वीडियो पॉज कर दो, अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, आफ्टर दैट यू कैन चेक योर आंसर। अगर आपका आंसर ठीक हुआ तो मेरी तरफ से चीयर्स, और आंसर अगर गलत हुआ तो एक सेटअप लगा लेना। ओके, तो थर्ड एंड 10th टर्म एपी का जो है उनका सम मुझे दिया हुआ है 40। तो थर्ड टर्म A3, 10th टर्म A10, इन दोनों का सम का मतलब होता है प्लस, इज 40। अब सेकंड क्या दिया हुआ है, 8th टर्म और 16th टर्म। तो 8th टर्म और 16th टर्म इन दोनों का भी मुझे दिया हुआ है सम, विच इज 70। मुझे इस क्वेश्चन में एपी फाइंड करनी है। थैंक गॉड, अगर डी करना होता अब की बार मैं बहुत केयरफुल होने वाली थी। तो A3 को क्या लिखते हैं, हाँ जी फिर से ए एन का फॉर्मूला बोलो बोलो बोलो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 से छोटा नंबर a प्लस 2d। फिर A10 का मतलब 10th टर्म, दिस इज a प्लस 9d एंड द आंसर इज इक्वल टू 40। तो 2a प्लस 11d इज 40। ए तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पे 11 है, तो मैं 2 कॉमन लेके नहीं काट रही हूँ, क्योंकि उससे 11 फ्रैक्शन में बन जाएगा, फायदा ही नहीं है। तो ए को हम लिख सकते हैं a+7d, A16 को लिख सकते हैं a+15d एंड दिस इज इक्वल टू 70। तो a+a 2a एंड 7+15, सो इट इज 22d इज इक्वल टू 70, क्योंकि राइट साइड पे तो मेरा 70 रहेगा ना, चेंज नहीं होना कुछ। चलो जी, अच्छा हुआ 2 से डिवाइड ही नहीं किया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर दोनों में 2 है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना तो और ज्यादा आसान हो गया ना। तो वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन। सो 2a प्लस 22d इज इक्वल टू 70 एंड 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 40। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने यहाँ पे 2 को ना कैंसिल नहीं किया था। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, ठीक है ना। पता चला क्यों 2a को रखने का हमें बेनिफिट मिला। अब 22 माइनस 11 तो 11 ही होता है, 11 का टेबल ही तो चल रहा है। 40 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70, इट विल गेट 30। तो मेरे पास d का वैल्यू आया 30/11। ठीक, ठीक है ना। हाँ हाँ, कोई गलती नहीं किया तो ठीक ही होगा। तो d का वैल्यू है 30/11। अब इसको मैं पुट कर देती हूँ, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, आपकी मर्जी। तो मैं तो फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट में आपका पुट d इन इक्वेशन 1, वैल्यूज थोड़ी छोटी है ना न्यूमेरिक्स, इसलिए। तो 2a प्लस 11d, d को लिख दो 30/11 इज इक्वल टू 40। तो देखो 11 से 11 कैंसिल, ये +30 राइट साइड पे जाके -30 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू 40 माइनस 30 10 होता है, और यहाँ से a का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 5। अब हमें यहाँ पे एपी फॉर्म करनी है, तो एपी मेरा क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड एपी 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 ए, चलो फॉर्मूला लिख दो, ए प्लस डी
a plus 2d and so on. मतलब we will add d every time in preceding term. तो 5, अब 5 में आपको क्या ऐड करना है, 30/11. तो 30/11 कितना हो जाएगा, 11 5 55 प्लस 30 85. ठीक, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, 85/11 में फिर से मुझे ऐड करना है 30/11. तो दिस विल बी 5 8 plus 3 11 115/11 and so on. So the required AP is 5 85/11 and 115/11 and so on. So generally हम 2-3 terms, 2 तो नहीं 3 या 4 terms लिख देते हैं अगर हमें AP बनाने को बोला जाता है. So this is the final answer. Got it? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो हमारे दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टोन के हो गए हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दिस इज अ बिट डिफरेंट. तो जनरली क्या होगा, हम लोग 2-3 क्वेश्चन सेम फॉर्मेट की इसलिए करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, सेकंड क्वेश्चन में फिर हमने कन्वर्सेशन की, और थर्ड क्वेश्चन आई वुड लाइक यू टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. इन दैट केस जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया, मेरा वीडियो पॉज करो, अपना सॉल्यूशन निकालो एंड देन यू कैन मैच. अगर कुछ एरर है कमेंट. देन नेक्स्ट, अब ये मुझे पूछ रहा है व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी. अब मिडल टर्म का कंसेप्ट ना एनसीईआरटी में है नहीं, बट ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है. ये वाला क्वेश्चन का मतलब ये वाला कंसेप्ट, नॉट द सेम क्वेश्चन, मे बी क्वेश्चन डिफरेंट होगा. अब यहाँ पे देखो आपको जो एपी दिया है, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट. लास्ट टाइम गिवन है ना फाइनाइट एपी. तो ए की वैल्यू मेरी कितनी है 6. डी कैसे, देखो अब इतने क्वेश्चन हो गए हैं, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड subtract and then find. then last a and h टर्म मुझे दी हुई है 216. ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है n, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी दी हुई है. नंबर ऑफ टर्म्स हमारी जितनी दी होंगी उसके हिसाब से हम मिडल टर्म लिखते हैं. अब देखो मिडल टर्म में यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट होता है वो n इवन है या ऑड, उस पर डिपेंड करता है. तो जस्ट इन केस अगर हमारा n ऑड है, तो हमारी जो मिडल टर्म होती है उसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, मिडल टर्म का, मिडल टर्म मेरी हो जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म. और जस्ट इन केस अगर n हमारा इवन है, ठीक, तो उस केस में हमारी जो मिडल टर्म होती है ना, वो दो मिडल टर्म होती हैं. तो मिडल टर्म हमारी उस केस में क्या क्या हो जाएगी, एक तो n/2th टर्म, और दूसरी हमारी हो जाएगी n/2 प्लस 1th टर्म. तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे n इवन है या ऑड है, अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड. ऑड होगा तो 1 मिडल टर्म होती है, इवन होगा तो 2 मिडल टर्म होती है. तो ए एन, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d. चले पुट करें, ए एन की जगह क्या डालूंगी मैं, 216, ए की जगह 6, एन तो फाइंड करना है ना, तो उसकी जगह कुछ कोई डालेंगे यार, और डी की जगह डाल दो 7. अब ये वाला 6 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट, 216 माइनस 6, और नेक्स्ट स्टेप में ये जो 7 है ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. ठीक, वैसे मैंने बोला था मैं शॉर्टकट लूंगी, पता नहीं मैं शॉर्टकट ले क्यों नहीं रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है. अब ये मेरा आ गया 30 और ये 1 यहाँ के ऐड हो जा रहा है, तो 31. तो एन 31, दिस इज ऑड. तो कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 1 या 2, 1. एन अगर ऑड होता है तो, ऑड होता है तो एक टर्म होती है मिडिल टर्म. तो मेरा यहाँ पे मिडल टर्म मतलब ए मिडल टर्म जो होगी ना, वो पहले हमें निकालनी क्या है. तो ए मिडल के लिए मैं क्या निकालती हूँ, n प्लस 1/2th टर्म. तो दिस इज 31 प्लस 1 32/2 16th टर्म. तो 16th टर्म जो होगी दिस विल बी द मिडल टर्म ऑफ दिस एपी. तो अब आप यहाँ क्या करोगे, a16. a16 an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 15d. a की जगह 6, 15 इंटू बोलो 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 7, तो 15 7 105, 15 7 105. और इसमें आप क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो 6 प्लस 5 11 111. 111 is the middle term of the AP to 6 30 20 and up to 216. So अगर यहाँ पे मेरा इवन होता n, तो मेरे पास दो मिडल टर्म बन जाती. चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारे पास कंसेप्ट है, ये बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 lie between 50 and 500. ठीक, तो अब देखो मेरे को जो
नंबर दिए हुए हैं 50 से 500 दिए हुए हैं, बट 50 तो 7 से डिविजिबल है नहीं ना, तो हम 50 के नेक्स्ट जो भी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 उसको कैसे चेक करेंगे? 7 का टेबल है ना, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड सो ऑन। तो यहाँ से तो मेरा ऐसे स्टार्ट हो गया। अब 500 से जस्ट पहले जो भी 7 का मल्टीपल होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 500 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 7 जा 49, 1 10, 7 1 जा 7, तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, 497। अब ये जो 497 आपका है, बेसिकली दिस इज द number which is divisible by 7 and it is less than 500। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, यू कैन चेक एज वेल बाय डिवाइडिंग इट विद 7, बट यहाँ पे हम इतना काम कर चुके हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड। अब मुझे क्या करना है? हाउ मेनी मल्टीपल्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स। एको नहीं हो रहा, बार बार बोल रही हो एक ही बात को। ए की वैल्यू कितनी है? 56। डी की वैल्यू कितनी है? अभी मैं तो यार सीधा लिख रही हूँ, तुम लोग लेके, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, अभी पेपर देना है, तुम कैसे लिखोगे? A2 माइनस A1, 63 माइनस 56, 7 का टेबल ही तो चल रहा है ना यार। तो अब ए एन मेरे को दिया हुआ है 497, तो अब यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला, अरे यार अब तक तो मुझे लग रहा है आप लोग बोलोगे यार मैम अब ना याद हो गया, प्लीज अब दोबारा मत पूछना हमसे। चलो देखते हैं अब कौन कौन बच्चा क्वेश्चन सॉल्व ठीक से करेगा। इफ यू गॉट द करेक्ट आंसर तो मैंने क्यों बोलना है बार बार कि एक ही काम करते रहो, है ना? बट पेपर में यार प्रेजेंटेशन कर देना। कभी कभी क्या होता है, आप लोग इतना अच्छे से क्वेश्चन सीख जाते हो कि पेपर में प्रेजेंटेशन के नाम पे नंबर कटवा के आते हो, फिर बड़ा गुस्सा आता है। तुम्हें लगता है इतना आसान क्वेश्चन है, यू इवन डोंट रिमेम्बर दिस वाज वन ऑफ द स्टेप। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 497 में से 56, 441, और ये वाला 7 यहाँ आके अब हमें डिवाइड कर रहा है, और इस वाले -1 को हम नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देंगे। तो 7 6 जा 42, 2 7 3 जा 21, ये वाला 1 यहाँ आके ऐड हो रहा है, हमारा आंसर आ गया। देयर आर 64 multiples of 7 which lie between 50 and 500। Yes, we got the answer। तो बच्चा अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 5.1 और 5.2 दो एक्सरसाइजेस के कंसेप्ट डिस्कस किया है, बट अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा वेरी हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ पूछना भी है, तो यू कैन जस्ट कमेंट मी। ठीक है बच्चा? थैंक यू so much, see you in the next class, bye bye।